بیانات اور نعت شریف کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل جی این وائس کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات، بارگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر فرماتے ہیں کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ یہ محفل نورانی محفلیں ہیں۔ اس محفل میں وہی شامل ہوگا جس کے دل کے اندر احساس ہوگا، ان محفلوں میں وہی بیٹھا کرتا ہے جس کے دل میں ایمان کی حرارت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے یا اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کا ذکر ہوتا ہے، دین کا ذکر ہوتا ہے، شریعت کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، انسانیت کا ذکر ہوتا ہے، حقانیت کا ذکر ہوتا ہے، صداقت کا ذکر ہوتا ہے، معرفت کا ذکر ہوتا ہے، رسالت کا ذکر ہوتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ جو اہل حق ہے، اہل نظر اور اہل دل ہے، ان مجلسوں میں بیٹھ کر کے شرکت کر کے دارین کا ثواب حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، اس محفل کے اندر بیٹھنے سے جو فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں، جو دلوں کو اطمینان اور سکون میسر ہوتا ہے، وہ کہیں اور نہیں ہوتا۔ یہ نورانی محفلیں بے شک کیا ہے، جنت کی کیاریاں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جہاں ذکر اللہ کیا جاتا ہے، ذکر نبی ہوتا ہے، تو وہ نورانی محفلیں ہوا کرتی ہیں، اور ان نورانی محفلوں میں جو بیٹھتا ہے گویا کہ وہ جنت کی کیاریوں میں بیٹھتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جنت کی کیاری یہاں ہے، یہاں اللہ کے رسول اللہ کا ذکر ہے، اور یہ دیکھیے کرسیاں کتنی خالی، کرسیاں کتنی خالی، اور جبکہ ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، اس فنا چیز کی طرف آدمی روا روا ہے، بہت زیادہ شوق اور ذوق کے ساتھ ہے۔ لیکن آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن ذرا یہ تو بتا کہ آخر کیا معاملہ ہے اس دنیا کا، معاملہ کیا ہے دنیا کا؟ یہ آسمان کی جو اونچائی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ زمین کی جو ستل زمین ہے اس کا کیا معاملہ ہے؟ یہ پانی کی طغیانیاں ہے، سمندر کی طغیانیاں ہے، ان کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کے اندر ایک عجیب و غریب کیفیت ہے کہ وہ دنیا کی طرف زیادہ جاتا ہے، دنیا کی طرف زیادہ بھاگتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ جدھر رنگرلیاں ہوتی ہے، جدھر وہ زیادہ روشنیاں ہوتی ہیں، جہاں ہاہاکار ہوتی ہے، جہاں پر گل چھڑے ہوتے ہیں، وہ ادھر کیوں جاتا ہے؟ تو برادران ملت اسلامیہ یاد رکھیے گا، یہ آپ کی نظروں سے دور نہیں ہے، آپ خود اپنی نظروں سے ملاحظہ پہلے بھی کرتے ہو اور آج بھی کر رہے ہو، لیکن اللہ کے رسول کے ذکر میں وہی جاتا ہے جو اہل نظر ہوتا ہے، وہی جاتا ہے جو قرآن کا صحیح معنوں میں پڑھنے والا ہوتا ہے، جن کے گھروں میں قرآن کام کی زینت نہیں بلکہ وہ قرآن کی زبانوں پر قرآن بطور تلاوت کے جاری رہتا ہے، اور قرآن کا اثر ان کے دلوں کے اندر مؤثر ہوتا ہے۔ برادران اسلام، وہی لوگ جو اللہ کے رسول کے ذکر میں شامل ہوتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے ذکر میں شامل ہوتے ہیں، نورانی محفلوں میں شامل ہوتے ہیں، اور جنت کی کیاریوں میں رہ کر کے لطف اندوز ہوا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان سرکار مدینہ، تاجدار ختم نبوت، فیضان سید ربانی شاہ علامہ مولا وسیم اللہ صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ نورانی محفل ہے لیکن کرسیاں خالی ہیں۔ بڑی مؤدبانہ گزارش کروں گا، اپنے چہل قدمی کرنے والے تمام ہی اسلامی رشتے کی بھائی اور بہن اور جتنی بھی مائیں بہنیں ہیں وہ پردے کے دائرے میں رہ کر کے سماعت کر سکتی ہیں، اس لیے کہ یہ محفلیں روز نہیں میسر ہوتی ہیں، لہٰذا ان محفلوں میں رہ کر کے ہمیں دستور حیات سیکھنا ہوگا، دستور زندگی سیکھنا ہوگا، ہمیں وہ آئیڈیل کی آئیڈیولوجی اپنانا ہوگا جس کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہیں دنیا میں کسی کو نہیں دیکھنا ہے، کسی کو آئیڈیل نہیں بنانا ہے، نہ کسی کرکٹر کو آئیڈیل بنانا ہے، نہ کسی ایکٹر کو بنانا ہے، نہ کسی کلاکار کو بنانا ہے، نہ کسی منتری کو بنانا ہے، نہ کسی سنتری کو بنانا ہے، کسی کو نہیں
बनाना, अगर तुम्हें आइडियल बनाना है तो कुरान से पूछना होगा। कुरान तू अल्लाह की वाहिद ऐसी किताब है जिस किताब के अंदर बदलाव नहीं हो सकता। कुरान तू ही तो है, ला तब्दीला ली कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात को कोई बदल नहीं सकता। कुरान तू ही तो है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन, हमने कुरान को उतारा है और हम खुद कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। और अल्लाह फरमाता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ा, हमने कुरान को शिफा बना करके उतारा है, और रहमतुल लिल मुमिनीन, और कुरान को रहमत बना करके उतारा है। मेरे गंजूर मुसलमानों, जरा बात सुनते चलना, एक एक बात को अपने दिल की तख्ती पर नोट करते चलना। कुरान 1450 साल पहले से तमाम अरब के रेगिस्तानों में भी कहा, मक्के में भी कहा, मदीने में भी कहा, ताइफ में भी कहा, मिस्र में भी कहा, यूनान में भी कहा, गज़े के जहां जहां पर भी इंसानियत रह रही है तमाम के लिए ये कुरान हिदायत का सरचश्मा है। इसी कुरान के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो कुरान है जिसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। ए कुरान तू बता, क्योंकि हमारे मुसलमान, हमारे बाप, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारे खानदानी लोग, हमारे घर के लोग बेरहमी का शिकार हो गए हैं। आदमी इंसानियत के रास्ते को छोड़ बैठा है, सिराते मुस्तकीम से डगमगा रहा है। ये इंसानियत की लो बुझती जा रही है, मानवता की लो टिमटिमा रही है। इस टिमटिमाने वाली लोगों को अगर कोई जिंदगी देने वाला है तो फकत कुरान है। और वो कुरान क्या कह रहा है? ए दुनिया वालों, किसी के पास नहीं जाना, किसी को आइडियल नहीं बनाना, बल्कि कुरान से पूछ लेना कि कुरान जिसको कहे आइडियल बनाना है तो तुम्हें आइडियल बना लेना है, उसी को नमूने हयात बना लेना है, उसी को ज़ाब्ता हयात बना लेना है। कुरान की बारगाह में जब गए तो कुरान ने कहा कि अगर तू आइडियोलॉजी जानना चाहता है तो एक जात है, और वो जात कौन सी है? रब फरमाता है कुरान में लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हें दुनिया के किसी को नहीं देखना, मोहम्मद मुस्तफा की सीरत को अपना लोगे और चलोगे सुन्नत पर तो दुनिया भी तुम्हारे कदम चूमेगी और आखिरत में भी तुम्हारा सर बुलंदी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, ताजदारे खत्मे नबूवत, फैज़ाने औलियाए किराम, हज़रत अल्लामा मौलाना वसीम रज़ा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल पाक की जात में एक आइडियल है, दस्तूर हयात है, दस्तूर जिंदगी है। अगर जिंदगी जीना है तो मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नतों पर चल करके जी जाएगी। अगर जिंदगी जीना है तो मुसलमान बन करके जीना है। अगर मौत आना है तो हालत ईमान में अल्लाह मौत अता फरमाए, ये दुआ करना है। मुसलमानों याद रखिएगा, आज हमारी जिल्लत और पसपाई की वजह यह है कि हमने कुरान के ऊपर से कुछ डाल दिया है। वजह यह है कुरान से तालीम लेना छोड़ दिया है। आज बेरहमी का शिकार होकर के हम बर्बाद हो गए हैं। हर जगह मारे जा रहे हैं, हर जगह तोड़े जा रहे हैं, हर जगह चुतियाए जा रहे हैं, हर जगह जूते मारे जा रहे हैं, हर जगह बेइज्जती की जा रही है। क्यों? इसलिए कि हमने कुरान को छोड़ा है। अरे यही कुरान था, जब कुरान को अबू बकर सिद्दीक ने अपने सर पर रखा था तो पूरी दुनिया उनके पीछे चली थी। हमारे फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने इसी कुरान से अदल और इंसाफ के वो जौहर बखेरे थे कि आज भी मुस्लिम ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम, सिर्फ इंडिया का नहीं, मक्के का नहीं, अरब का नहीं, बल्कि अरब के अलावा यूरोपियन देश भी आज भी हजरत उमर फारूक की अदालत और उनके इंसाफ को आज भी मानने वाले हैं, आज भी कायम है। अरे ये अदालतें बनी है, ये कचहरियां बनी तो सबसे पहले अबू हजरत उमर फारूक ने बनाई। ये चौकियां बनी तो सबसे पहले ये चौकियों को बनाने वाला हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला है। ये जो मुसाफिर खाने हैं, इन मुसाफिरों खानों को वजूद देने वाला कोई और नहीं, यही कलमा पढ़ने वाला, यही नबी की बारगाह में शर्फ़े तलफ़्फ़ुज़ हासिल करने वाला कोई और नहीं, उमर फारूक है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पर चल करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने औलियाए किराम, अल्लामा मौलाना वसीम रज़ा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मुसलमानों एक एक बात अपनी तख्ती पर, दिल की तख्ती पर नोट करना, और इस महफिल से जब आप जाओ तो कुछ ले करके जाना, इसलिए कि ये दुनिया फना होने वाली है। इस दुनिया का कोई वजूद नहीं है। ये दुनिया तो पानी के बुलबुले की तरह है कि जरा सी देर में बुलबुला आया तो लगता है कि जाएगा नहीं, खत्म नहीं होगा। उस बुलबुले की ऊंचाई देखकर, उसकी रंगत देखकर, उसकी चमक दमक देख करके लगता है ये पानी का बुलबुला जाने वाला नहीं है, लेकिन आनंद फानंद में ऐसे गायब हो जाता है कि गोया कि वो कभी उसका वजूद ही नहीं हुआ था। इसलिए मुसलमानों याद रखिएगा, ये जो
जो जिंदगी मिली है एक ही बार मिली है, या तो कारगर बना लो या फिर बेकार बना लो। ये अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे के अंदर भी ये चीज डाली है। अगर हम मुसलमान हैं तो इस जिंदगी को अपने कारगर करने की कोशिश करेंगे, कामयाब बनाएंगे, और कामयाब कहीं और नहीं बनेगी। कामयाब अगर ये जिंदगी बनेगी तो ये जिंदगी अल्लाह के रसूल की हदीस से पढ़कर उस पर अमल करके के बनेगी। अगर ये जिंदगी कामयाब बनेगी तो कुरान की तालीम हासिल करके, कुरान का माना और मतलब और तफसीर मालूम करके उसके एतबार से जिंदगी गुजार कर तब ये कामयाब होगी। वरना याद रखिएगा ये दुनिया फानी है। कुरान कह रहा है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर चीज फना हो जाएगी, ये आसमान टूट जाएगा, जमीन फट जाएगी, सब खत्म होगी। ये मैं नहीं कहता बल्कि हमारा और आपका कुल कायनात का कुरान कह रहा है, रब का फरमान कह रहा है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर चीज फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की जात। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सिर्फ अल्लाह की जात है, वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। बाकी रहने वाली जात सिर्फ परवरदिगार की है। ऐ मुसलमानों, जब बाकी रहने वाली जात अल्लाह की है तो किसके पास जाएंगे? हम अपने रब के पास जाएंगे, हम अपने अल्लाह के पास जाएंगे। याद रखिएगा जब किसी का दिल टूटता है, जब किसी का घर वाला परेशान करता है, जब किसी का दोस्त परेशान करता है, जब सब लोग छोड़ जाते हैं, जब सारे सहारे टूट जाते हैं, तो शायर ने कहा है ये शेर का मतलब अरबी का हमें ये एहसास दिलाता है, सहारा दिलाता है। शायर कहते हैं वस्तुत यदई का बिहबलिल्लाह, अपने दोनों हाथों को अल्लाह की रस्सी से मजबूती से जकड़ ले। भाई लहु रुकनो इन खानत का अरकान। अरे वही तो एक सहारा है, जब सारे सहारे ये एक सहारा है। भाई लहु रुकनो इन खानत का अरकान, वही एक सहारा है। परवरदिगार आलम, मेरा बाप मेरी नहीं सुनता, मेरा शोहर मेरी नहीं सुनता, मेरा भाई मेरी नहीं सुनता, मेरे घर वाले मेरी नहीं सुनते। जब कोई सब सहारे टूट जाते हैं तब वो बंदी मुसल्ला बिछाकर अपने रब को याद करती है। और जब इस बंदे के घर वाले और अजीजों करीब साथ छोड़ते हैं तो ये मस्जिद में जाकर के अपने रब के बारगाह में सजदा करके अपने दिल की तमाम मुद्दे अल्लाह के सामने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अपने रब की तरफ रुजू करें, क्यों ना उस जात की तरफ रुजू करें। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। बाकी रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की जात है। मेरे खजूर मुसलमानों, याद रखिएगा कि आज हम अगर मुसलमान हैं तो वो कुरान और हदीस की वजह से है, अपने रसूल पाक की वजह से है। शराइत इस्लाम जितने भी हैं उन तमाम चीजों को मान करके हम मुसलमान हैं। अगर हम लोगों का मामला ऐसे होंगे कि इस्लाम से सरोकार नहीं होगा तो लोग हमें गाली भी देंगे, लोग हमें बुरा भला कहेंगे। आप बताइए तो सही, उस वक्त टेक्नोलॉजी का जमाना न था, उस वक्त कोई मोबाइल इजाद नहीं हुआ था, कोई ऑनलाइन सिस्टम न था, कोई वीडियोग्राफी का सिस्टम न था। 1450 साल पहले आदमी इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। बिरादरान इस्लाम, लेकिन ऐसे मामलात हुए कि अरब के रेगिस्तानों में कुरान उतरा अल्लाह के रसूल के कल्बे अतहर पर। लेकिन आज कोई कंट्री ऐसी नहीं है, कोई देश ऐसा नहीं है जहां पर अल्लाह का नाम लेने वाला न हो, जो कुरान का पढ़ने वाला न हो, कुरान को समझने वाला न हो। अरे तुम नमाज पढ़ने वाले तो एक अलग बात है, कलमा पढ़ने वाले तो एक अलग बात है, बल्कि माइकल हार्ट जो न्यूयॉर्क का रहने वाला मजहब है ईसाई, जब उसने किताब लिखी मोस्ट टॉप 100 लोगों की लिस्ट बनाई, उसने सबसे इंपोर्टेंट लोगों की पूरे दुनिया के लोगों पर जब उसने रिसर्च किया तो वो कोई कलमा पढ़ने वाला न था, वो कोई मजहब इस्लाम से ताल्लुक रखने वाला न था, बल्कि वो मजहब से ईसाई था। लेकिन जब उसने पढ़ा तो बिरादरान इस्लाम, आज जो साइंस की वजह से पूरी दुनिया साइंस के पीछे जाती है, उस साइंस के इजाद करने वाले न्यूटन को माइकल हार्ट ने दूसरे नंबर पर रखा और पहले नंबर पर हमारे और आपके कुल कायनात के आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। माइकल हार्ट ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नंबर पर रखा। आप अंदाजा लगाइएगा, पूरी दुनिया में से 100 लोगों को चुना और 100 लोगों को चुनने के बाद एक नंबर पर अल्लाह के रसूल को, दूसरे नंबर पर न्यूटन को रखा, तीसरे नंबर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रखा। इससे पता ये चला कि आपके इस्लाम की सदाकत ये है, आपके इस्लाम की सच्चाई ये है कि लोग जो है वो खैर अपने नहीं बल्कि गैर भी आपके इस्लाम की हक़ानियत को जानते हैं, आपके नबी की शान को पहचानते हैं। तो जब कलमा न पढ़ने वाले उन
उनकी शान में किताबें लिख रहे हैं, उनकी शान में नंबर 1 पर अल्लाह के रसूल को रख रहे हैं। तो जिनका कलमा हम पढ़ते हैं, लिहाजा हम कलमा पढ़ने वालों का हक कितना होगा? क्या हमारा इतना हक नहीं कि उनकी मजलिसों में बैठकर उनके नाम पर ये खाली कुर्सियों हाथ में जब किताब लिखी और उन टॉप 100 लोगों में नंबर 1 पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा, इससे पता ये चला कि जो कलमा पढ़ने वाला नहीं है, मजहब से ईसाई है, लेकिन बिरादरान इस्लाम हमारे नबी के कसीदे पढ़ रहा है, नाम भी नंबर 1 पर लिख रहा है, तो जो कलमा पढ़ने वाले हैं उनका कितना बड़ा हक होगा कि अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र करते रहे और जहां भी महफिलें हो उन महफिलों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहे, इसलिए कि हर चीज फना होने वाली है, बाकी रहने वाली जात अल्लाह की है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी बाकी रहने वाला है। अब आप अंदाजा लगाइए, ये मैंने आपके सामने कुरान मुकद्दस की आयत करीमा पेश की है। मुसलमानों याद रखिएगा, हमारी इज्जत और शराफत इस वजह से है कि हम मुसलमान हैं। सबसे बड़ा फख्र का मकाम ये है, सबसे बड़ी फख्र की बात ये है कि हम अपने नबी की उम्मत में हैं, हजरत मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत में हैं। अरे जब अंबियाए किराम ने जिनकी उम्मत में होने के लिए दुआएं मांगी हो, जब नबी उनकी उम्मती बनने के लिए अपने लिए मकाम आजाद समझते हैं, मरतबे वाली बात समझते हैं, तो हम लोग अल्लाह के रसूल की उम्मती हैं, तो कितनी बड़ी काबिल फख्र बात होगी, कितनी बड़ी काबिल शराफत बात होगी। इससे बड़ी शराफत और इज्जत क्या हो सकती है कि हम सैयदुल कौनैन के उम्मती। क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों याद रखिएगा, मैं आपके सामने चंद बातें पेश कर रहा हूँ। आज पूरी दुनिया में लोग मजहब इस्लाम को पहली निगाह से देखते हैं। अरे ऐसी बात अगर न होती तो मजहब इस्लाम सिर्फ मक्के के अंदर महदूद होकर के रह जाता, मदीने के अंदर महदूद होकर के रह जाता, अरब के खित्ते से ना गुजरता, जजीरा नुमाए अरब के अंदर ही रह जाता। मगर यही इसकी सच्चाई है कि 7 समंदर पार अमेरिका जैसी सरजमीन पर भी इसी मजहब इस्लाम के झंडे लगाए गए, ईरान को फतह किया गया, रूम जैसी पावरफुल हुकूमतों को पांव के तले होड़ डाला गया, उनके कलेजे पर भी फतह इस्लामी का झंडा लहराया गया। और ये सिर्फ इस वजह से नहीं कि तलवारें चली हैं, बल्कि इस वजह से कि अखलाक की तलवारें चली है, सब्र की तलवारें चली है, इंसानियत का पैगाम बुलंद हुआ है, इंसानियत ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। अगर इस्लाम ही ने इंसान को इंसान बनाया है, मानवता का असली पैगाम अगर किसी ने दिया है तो वो सिर्फ मजहब इस्लाम। नारे तकबीर, लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बेशक तुम्हारे लिए आइडियल और कोई नहीं है, ना कोई कलाकार है, ना कोई एक्टर है, ना कोई क्रिकेटर है। अगर तुम्हारे लिए कोई आइडियल है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, उसवे हसना अगर देखना है तो मोहम्मद मुस्तफा की जात में देखना होगा। तुम्हारा और सारे इंसानियत का हीरो अगर कोई है तो वो सिर्फ हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तमाम नारे दिए जाते हैं, पहले भी दिए जाते रहे, आज भी दिए जाते रहे हैं, लेकिन आज भी मुसलमानों को ये बात कही जाती है। टीवी डिबेटों पर जाकर के देखो, अनाप शनाप रखा जाता है, न्यूज चैनलों पर जाकर देखो, आपके मजहब इस्लाम के साथ खिलवाड़ मचाया जाता है। वो खिलवाड़ मचा सकते हैं इसलिए क्योंकि जिसकी कोख से जन्म लेने वाला गौसे पाक का गुलाम होना चाहिए था, उसकी कोख से जन्म लेने वाला तो वो है जो मजहब इस्लाम के अंदर खामियां निकाल रहा है। जिसकी कोख से पैदा होने वाला सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को फॉलो करने वाला होना चाहिए था। आज उसकी कोख से ऐसे बच्चे जन्म ले रहे हैं जिन्हें देख करके लगता नहीं कि मजहब इस्लाम से इससे दूर दूर तक कोई लेना देना हो। याद रखिएगा कि ऐसी मां बनना होगी कि जिसकी कोख से जन्म ले तो सुन्नत मुस्तफा पर चलने वाला, बाप की उंगली पकड़े तो वो बच्चा बाप की उंगली पकड़ करके ऐसा बने कि शरीयत मुतहरा के एक बेहतरीन आईन में ढला हुआ होना चाहिए। तब जाकर के मजहब इस्लाम को देख करके लोग गैर मुस्लिम भी देख करके कहते हैं ये जा रहा है नबी का दीवाना, ये जा रहा है मुसलमान। अरे इसी वजह से तो लोग अपनी महफिलों में अगर किसी गाड़ी वाले को देख लिया करते थे तो कहते थे इससे फैसला कराओ, इसलिए कि ये जो बोलेगा सच बोलेगा, मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता। आज हालात ये है कि हर आदमी मुसलमान से दूर भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? इसलिए कि कह रहा है कि कलमा तो पढ़ता है लेकिन ये झूठ से दूर नहीं है, झूठ बोलता है। इसलिए मुसलमानों याद रखो, अगर हकीकी मुसलमान है, पक्का सच्चा मुसलमान है तो उसकी नजरों में हया होती है, उसकी जबान में सच्चाई होती है, उसके दिल में ईमान की हरारत होती है, और जब वो किसी के साथ बात करता है तो मानवता और इंसानियत को सबसे पहले आगे रखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमान भाइयों तवज्जो चाहूंगा एक बात को अपने दिल की तख्ती पर नोट करिएगा।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی ذات ہے بہترین نمونہ حیات ہے تمام لوگوں کے لیے۔ آپ اندازہ لگائیے، ٹی وی ڈیبیٹوں پر برا بھلا کہا جاتا ہے، نیوز چینلوں پر برا بھلا کہا جاتا ہے، لیکن کبھی آپ کے ذہن میں نہیں آتا کہ میرا مذہب تو بڑا پیارا ہے۔ اور ہم نے تو ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے اپنی نظروں سے کہ جو لوگ کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن جب غیر آدمی دلیلیں پیش کرتا ہے، باطل دلیلیں پیش کرتا ہے، تو اس کا بھی ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے، وہ بھی بدزن ہونے لگتا ہے دین سے۔ لیکن بدزن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ارے بدزن ہونے سے پہلے اپنے قرآن کو پڑھ لیتا، حدیث پاک کو پڑھ لیتا، سیرت مصطفیٰ کو پڑھ لیتا۔ ارے صرف آج نہیں بلکہ غیر مسلم لوگ بھی 1450 سال سے آج بھی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، آج بھی نبی کی عزت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے عیوب سے پاک اور صاف بنا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مقبول کیا۔ نعرے تکبیر کے نعرے لگائے جاتے ہیں، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے نعرے تمام جگہ آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن حضرات آج تو ترقی کا زمانہ کہا جاتا ہے، آج تو ترقی یافتہ زمانہ کہا جاتا ہے۔ 1450 سال پہلے والے مذہب کو، حالانکہ میں 1450 سال نہیں کہوں گا بلکہ یہ مذہب اسلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، لیکن آخری پیغمبر مذہب اسلام کا کوئی اور نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں عرب کی سرزمین پر۔ کون سا عرب تھا؟ تو کوئی ایسی برائی نہ تھی جو برائی اہل عرب کے اندر موجود نہ ہو۔ ارے اپنی بچیوں کو زندہ قبروں میں دبا دیا کرتے تھے، اگر کوئی بیوہ ہوتی تھی تو اس بیوہ کو کال کوٹری میں بند کر دیا جاتا تھا، اس کے دامن میں منگنیاں بھر کر کے اگر کوئی بچ بھی جاتی تھی تو اسے گدھے پر بٹھا کر کے پوری گلیوں میں گھمایا جاتا تھا اور وہ اپنے دامن کی منگنیاں اٹھا کر کے وہ لوگوں کے اوپر پھینکا کرتی تھی۔ آپ اندازہ لگائیے گا مذہب اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت فرمانے سے پہلے حالات یہ تھے، بیواؤں کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا، یتیموں کے مالوں کو کھایا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ قبروں میں دبا دیا جاتا تھا۔ ارے وہاں بچی بچائی نہیں جاتی تھی بلکہ بچی ماری جاتی تھی، بچی دبائی جاتی تھی۔ لیکن جب اللہ کے رسول تشریف لائے، آپ اندازہ لگائیے گا جب دنیا جس ماحول میں بہتی ہے اس ماحول میں بہ جانا تو ایک عام بات ہوتی ہے، لیکن ایک سمندر کے آگے اکیلی ذات چٹان بن کر کھڑی ہو جائے کہ سمندر کے پانی کا بہاؤ اس طرف دوڑ رہا ہو، اس طرف جا رہا ہو، اور ایک چٹان بن کر حضرت محمد مصطفیٰ کھڑے ہوئے اور پورے پانی کے بہاؤ کو، اس جہالت کے بہاؤ کو اپنی ذات سے روکا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس تیز دھارے کو روکنا یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ اس وقت بچیوں کو زندہ قبروں میں دبایا جاتا تھا، بیواؤں کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا، ننگا ہو کر خانے کعبہ کا طواف کیا جاتا تھا۔ ایسے ظلم و تشدد اور پرفتن والے دور میں اللہ کے رسول تشریف لائے۔ میرے نبی نے جب اب تشریف لائے تو حضرت فاطمہ الزہرا لخت جگر کو نظر اللہ کے رسول کی بیٹی جب اللہ کے رسول کے پاس جاتی تو میرا نبی کھڑا ہو جاتا تھا اور کھڑے ہو کر کے اپنی بیٹی کا استقبال کرتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے میرے نبی نے اس وقت بھی جب کہ زندہ بچیوں کو تربیت کیا جاتا ہو، جہاں داماد بنانا ایک بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہو، اس دور میں اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کے لیے اپنی جگہ چھوڑی اور یہاں تک کے ہاتھ ملایا اور ملا کر کے اپنے بیٹھانے کی جگہ، اپنے بیٹھنے کی جگہ اپنی بیٹی کو بٹھایا۔ اللہ کے رسول نے اپنی جگہ پر بیٹی کو بٹھایا۔ یہ بات دنیا والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کا رسول سے اسلام چلا ہے۔ ایسے ویسے ایرے گہروں کو دیکھ کر اسلام کو جج مت کرنا، اور اسلام اگر جج کرنا ہے تو محمد مصطفیٰ کو کرنا ہے تو تمہیں ایرا گہرا کو دیکھ کر جج نہیں کرنا، بلکہ تمہیں اگر جج کرنا ہے تو پیغمبر اعظم کو دیکھ کر کے جج کرنا ہوگا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، آئیڈیل ہے۔ برادران ملت اسلامیہ غور کرنے کا مقام ہے۔ حضرت عدی بن حاتم اس وقت ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ عدی بن حاتم کے قبیلے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا گیا۔ حضرت علی وہاں سے کچھ عورتوں کچھ آدمیوں کو لے کر اللہ کے رسول کی بارگاہ، اور جب وہاں پر تشریف لے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، جب عورت کو وہاں پر جو عورتیں تھیں ان کو بھی بٹھا دیا گیا اور ایک طرف کھڑا کر دیا گیا، کچھ آدمی بھی کھڑے ہو گئے۔ عدی بن حاتم قبیلے بنو کے کچھ عورتیں کچھ آدمی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ مسلمانوں ذرا توجہ چاہو آپ تمامی حضرات کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ عورتیں حاضر ہوئی
तो उनमें बहन थी अदी बिन हातिम की, हातिम ताई की बहन बेटी भी मौजूद वहां थी, अदी बिन हातिम की बहन मौजूद थी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया जब वहां पर हाजिर किया गया तो अदी बिन हातिम की बहन के सर पर दुपट्टा नहीं था, चादर नहीं थी, बल्कि सर बिल्कुल नंगा था, सर पर चादर नहीं थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतार करके अदी बिन हातिम की बहन के सर पर रख दी। जब चादर सर पर रखी तो एक सहाबी ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह आपने ऐसा क्यों किया, आपने सर पर चादर क्यों रखी? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्यों न रखो? कहा सहाबी ने, या रसूल अल्लाह ये कलमा पढ़ने वाली नहीं है, अभी ये दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुई है, मज़हब इस्लाम में अभी नहीं आई है। जब मज़हब इस्लाम में नहीं आई है तो आपने इसके सर पर चादर क्यों रखी? ये जुमला जो अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, तारीख इस्लाम ने आज भी 1400 साल का अरसा गुजर गया, आपने कलेजे में सबक करके रखा हुआ है। वो आज भी पूरी दुनिया के लिए अल्लाह के रसूल का ये पैगाम काफी है मज़हब इस्लाम की हक़ानियत और सदाकत के लिए। लेकिन फिर भी अगर लोगों की निगाहों पर पर्दे पड़े हैं तो वो तासुब के पर्दे पड़े हुए हैं, और तासुब की ऐनक जब हटेगी तो सच सामने आ जाएगा, रोशनी सामने आ जाएगी। लेकिन चमगादड़ अगर उल्टी लटक करके अगर सूरज का इनकार कर बैठे तो सूरज का कुछ नहीं बिगड़ता। इसी तरीके से तासुब वाले तासुब की ऐनक लगाकर मोहम्मद मुस्तफा की शान में अगर गुस्ताखियां कर रहे हैं तो उनकी गुस्ताखियों से कुछ नहीं होगा। सूरज आज भी चमक रहा है, कल भी चमक रहा था, आज चमगादड़ आज भी उल्टी लटकी हुई है, लेकिन मज़हब इस्लाम का सूरज कल भी चमका, आज भी चमक रहा है, सुबह क़यामत तक चमकता रहेगा। इसलिए कि एक बंदा भी जब तक अल्लाह उसके रसूल का नाम लेवा होगा, अल्लाह ताला क़यामत कभी खैर नहीं फरमाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ सहाबी सुनो, ये अगर कलमा पढ़ने वाली नहीं है, मज़हब इस्लाम से ताल्लुक नहीं रखती तो क्या हुआ, लेकिन ये किसी की बेटी तो है, ये किसी के घर की इज्जत तो है, ये किसी के बाप का गुरूर तो है, ये किसी भाई का फख्र तो है, ये किसी माँ का दिल का टुकड़ा तो है। अगर चाहिए मुसलमान नहीं तो क्या हुआ, लेकिन ये लड़की है, इसकी इज्जत के लिए अल्लाह के रसूल ने अपनी चादर उसके सर पर रख दी। दुनिया वालों को पैगाम दिया, देखो ये मज़हब इस्लाम है जो लड़की को बचाता भी है, लड़की की इज्जत भी करता है। इससे मजहब नहीं देखा करता, बल्कि यहाँ इंसानियत देखी जाती है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इस मुख्तसर से वक्त में मैंने आप हजरात के सामने यही पैगाम पहुंचाना है कि याद रखिएगा, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उस्वा हसना है, उनकी जिंदगी हमारे लिए आइडियल है। लिहाजा उनके रास्ते पर चल करके इंसान मकाम उलूम हासिल करेगा, बुलंद मकाम हासिल करेगा, दुनिया भी उसकी कामयाब होगी, अल्लाह तबारक व तआला उसे आखिरत में भी कामयाबी के ताज को फैला करके रखेगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार हमारे इस मुख्तसर से वक्त में जो बयान हुआ, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।